Hello everyone. So today we are going to learn the chapter Birth by A.G. Cronin. So before we start this chapter, I would like to discuss few key points of the chapter that will help you to understand the chapter in a better way. So let's start. The first point is Joe Morgan waiting for Dr. Andrew. So who is Joe Morgan? We will find out while we will read the chapter. The case demanded all attention of Dr. Andrew. So, what was the case and why it required the high demand? So, we will also understand. And then Dr. Andrew's mind wandered. Why he was wondering, what happened to him, why he was not 100% about him, what he was thinking. So, we will find out. And then the horrifying dilemma, the dilemma that what he should do, what he should not. So this thing occurs between the chapter and Dr. Andrews efforts to save the child, and then the miracle happened. And what was the miracle? So we will find out. Dr. Andrew is relieved, and at the end of the chapter we will find that how Dr. Andrew got relieved. So, before we start the chapter, we need to understand few major character that I have already written here. Dr. Andrew Mason, he is recently completed his MBBS and he is working as an assistant under Edward Page in Blenheim. It is a mining area. Then we have another character is Joe Morgan. He is about 40 years of age and he is expecting the first baby because after having lots of trouble, the couple Joe Morgan and Suzanne Morgan, I know they are expecting their first baby in their middle age. So it was quite difficult to have that baby. So that's why the case required the 100% attention, जिसकी वजह से उस पर बहुत ध्यान देना था. Susan's mother, she is a 70 years old lady, gray haired. And then we have midwife. So midwife यहाँ पे कौन है बाबू? So midwife is a helping hand for Dr. Andrew. जैसे वो गाँव में होते हैं ना, जो लोग मतलब they are not medically practiced but they know how to deliver a child. ठीक है ना? तो उसको midwife कहते हैं. ठीक है ना? तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस पे कहानी क्योंकि हुआ क्या. तो कहानी की शुरुआत होती है, रात के 12 बज रहे होते हैं और जॉय मॉर्गन जो है वो क्या कर रहा है, डॉक्टर एंड्रयू मैसन के क्लिनिक के बाहर अप एंड डाउन कर रहे हैं और उनकी जो चेहरे पे है वो चिंता की लकीरें हैं, है ना. ही इज सो वरीड, ही इज सो लाइक क्या उसको कह सकते हैं, मतलब एकदम परेशान हताश, है ना, कि क्या होगा नहीं होगा. तो जो है वो परेशान है और वो किसका वेट कर रहे हैं, डॉक्टर एंड्रयू मैसन का वेट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि भाई जो मॉर्गन is I have told you already that he was expecting his first baby. His wife was pregnant और वो काफी मिडिल एज में थी, तो उनको ना कॉम्प्लेक्सिटीज रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एंड क्या बोलते हैं उसको, वो जो बच्चे का जो जन्म की लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, तो जिसकी वजह से कौन वेट कर रहा था मैं वहां पे, जो मॉर्गन वेट कर रहा था एंड्रू मैसन का. और एंड्रू मैसन जो है अभी उनका रिसेंटली ब्रेकअप हो रखा है ना, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ. तो वो लाइक उनका जो सोच है चीजों के बारे में, है ना, द थिंग एंड द वर्ल्ड एंड अबाउट द गर्ल्स एंड द वुमेन एंड द सोसाइटी, वो एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं. वो काफी लिस्टलेस है, थके हुए हैं, एंजाइटी से वो भी भरे हुए हैं, है ना, चीजों को लेकर दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं. बट एट द एंड ही इज अ डॉक्टर, सो ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज प्रोफेशन. तो जब वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाई जॉय मॉर्गन इज देयर. तो जैसे ही जॉय मॉर्गन ने किसको देखा, डॉक्टर एंड्रयू को, सो ही गॉट अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ भाई चलो फाइनली डॉक्टर आ गए. और अब जो है जॉय मॉर्गन ने एंड्रू को अप्रोच किया कि भाई चलो, है ना, माय वाइफ्स कंडीशन इज नॉट गुड, ही इज गेटिंग द लेबर पेन, सो यू शुड बी देयर टू हैव दैट चाइल्ड. Andrew hadn't any energy left in his body, but still he was a doctor, so he cannot, say no to Joy Morgan, and he decided to go. और उसने कहा ठीक है, just wait outside for 2 minutes. I'm going inside the room and I'm taking back with my bag, है ना, जो उसमें डॉक्टर का जो इक्विपमेंट्स वगैरह होता है. फिर उसने अपना
कोट डाला और वो बैग लिया अपना, और बैग लेके वो कहाँ चल पड़े, वो जॉय मॉर्गन के घर की तरफ चल पड़े। अब जो है, जब जॉय मॉर्गन के घर डॉक्टर एंड्रू पहुंचते हैं, तो डॉक्टर एंड्रू क्या देखते हैं भाई, कि उसकी जो वाइफ है, एक है ना, एक चारपाई वगैरह में टाइप में वो लेटी हुई है, और उसको वहां पे कौन मदद कर रही है, मिडवाइफ है वहां पे। और वो सी इज अ वेरी पेसिमिस्टिक, है ना, लाइक कि हाँ क्या होगा नहीं होगा अबाउट द चाइल्ड एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज। एंड उसके बाद सुजैन की मदर को उन्होंने देखा, जो सुजैन के सिर के तरफ बैठी हुई थी, एंड हैविंग अ काइंड ऑफ अ डिजायर, और क्या कह सकते हैं आप, एक प्रकार की उसके अंदर वो है ना, एक इच्छा है कि मैं अपने, है ना, अपने बेटी के कोई भी जो भी बेटा हो बेटी हो, उसको मैं क्या करूं, अपने गोद में खिलाऊं। तो एक जो बुजुर्ग महिला की जो एक डिजायर होती है ना, वो थी उसके अंदर, दिख रही थी क्लियरली। घर बहुत ही वेल मेंटेन्ड नहीं था, वेल फर्निश्ड नहीं था, चीजें कुछ पुरानी फर्नीचर्स वगैरह थी। तो अब जो है, जब वहां वो पहुंचा डॉक्टर एंड्रू, तो सुजैन्स मदर केम अप वेरी हरिडली टू डॉक्टर एंड्रू। और उनको लगा कि शायद जो है ना, वो केस को देख के ऐसा ना कह दे कि वो चला जाए यहाँ से, है ना, कि भाई ठीक है अभी तो टाइम है तो चला जाए, बट वो चाहते थे, सुजैन की मदर चाहती थी कि डॉक्टर एंड्रू वहां पे रहे और पूरा अटेंशन दे, है ना, पूरा अटेंशन उस केस को दे, ताकि जो है उसका अच्छे से डिलीवर हो जाए, क्योंकि वही कॉम्प्लेक्स केस था। तो डॉक्टर सुजैन मदर आती है उनके पास, डॉक्टर के पास, कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो वो कहते हैं कि ओल्ड, है ना, कि ओल्ड मैन, क्या बोलती है, ओल्ड लेडी, डोंट वरी अबाउट इट, दैट आई विल बी हियर टिल योर दैट चाइल्ड विल नॉट बॉर्न। तो मैं यहाँ रहूंगा, आप टेंशन ना लो, आप आराम से रहो। और फिर वो किचन की तरफ चले जाते हैं डॉक्टर एंड्रू, और फिर वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं, जो उनके साथ अभी हुआ है, ठीक है ना, डॉक्टर एंड्रू के साथ। फिर जो है थोड़ी देर बाद सुजन की मदर उनको चाय की कप देते हैं, फिर वो किचन के पास ही खड़ा होकर चाय की कप पीता है। और फिर ऐसे होते होते फिर जो है वो कहता है कि भाई अभी तो टाइम है, अभी ऑपरेट नहीं करना है हम लोग को, अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। फिर जो है थोड़ी देर बाद सुजैन की मदर आती हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हैं कि आपने जो क्लोरोफॉर्म देने के लिए कहा है, तो सुजैन मना कर रही है। सुजैन कह रही है कि उसके बच्चे को ये हार्म करेगा। तो डॉक्टर एंड्रू एंड्रू कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डोज जो है वो लिमिटेड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनको दो और उनको बोलो कुछ नहीं होगा उनके बच्चे को। फिर जो है 3 बजे के आसपास, है ना, इज अबाउट 3 AM मॉर्निंग, तो उसको लगता है कि नाउ आई शुड स्टार्ट ऑपरेट, है ना। तो अब वो जो है ऑपरेट करने के लिए एंड्रू चला जाता है। तो जो एंड्रूज माइंड है ना, वंडर्ड, ये जो घूमता रहता है उसका दिमाग इधर उधर, वो जो उसके साथ बीता है चीजें, उसके बारे में वो सोचता है। अब जो है क्या हुआ कि भाई बच्चा जो है ऑपरेट शुरू हो गया, है ना, उसको क्लोरोफॉर्म वगैरह, जो एनेस्थीसिया जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न डे, तो वो उनको दिया गया। उसके बाद जो है एक एफर्ट के बाद बच्चा का जन्म होता है। अब जब बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा जो है वो एकदम पूरी बॉडी में, है ना, इट वाज अ बेबी बॉय, है ना, एकदम पूरा उसका पैर हाथ मुंह कान सब कुछ एकदम परफेक्ट शेप में था, व्हाइट कलर की बॉडी, एकदम सब कुछ बढ़िया था। बट वन कंडीशन वाज, है ना, कि क्या हुआ, वो बच्चा कैसा था, लाइफलेस था, जिसकी वजह से अब ये डायलेमा शुरू होता है ना, ये द हॉरिफाइंग डायलेमा, कि भाई अब जो है बच्चा जो है क्या है, लाइफलेस है। तो इस कंडीशन में उसकी माँ की भी कंडीशन, है ना, बच्चे की जो माँ है सुजैन की भी कंडीशन अच्छी नहीं है, because she is having that baby in very middle age, so because of that she was also not quite well physically। तो अब जो है कि डॉक्टर के पास ये डायलेमा होता है कि भाई वो क्या करे, बच्चे को वो देखता है और उसके मन में ना तरह तरह की बातें, कि भाई उस लेडी का क्या जो है ना, ये उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि उसको क्या होगा, एक बच्चा वो गोद में खिलाएगी। उस पिता का क्या, जॉय मॉर्गन, जिसकी जो बेचारा अभी भी बाहर वेट कर रहा है, क्योंकि वो अपने पत्नी का दर्द नहीं देख सकता है ना, चिल्लाहट सुन नहीं सकता है। तो बोला कि भाई उसका क्या होगा, जो ये उम्मीद पाल के बैठा है कि वो इस उम्र में भी बाप बनेगा, मिडिल एज में भी चलो उसको ये सुख मिलेगा बाप बनने का। और जो है उसके बूट्स की आवाज अभी भी बाहर से अंदर तक आ रही है, क्योंकि वो बाहर रोड पे वॉक कर रहा है ना, अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। और फिर जो है समझ में नहीं आ रहा होता है डॉक्टर एंड्रू मैसन को कि भाई कि क्या होगा अब, है ना, कि अब कैसे क्या होगा, और वो एक डायलेमा था। दूसरा था, बच्चा लाइफलेस था, तो अब ये भी एक समस्या है कि वो बच्चे के ऊपर ध्यान दे, कि उसको ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े, या फिर उस मदर को जो बेड पे है ना लेटी हुई है अनकॉन्शियस, उसको ध्यान दे। ये था उसका डायलेमा। Dilemma is a term when we are confused about something, कि what we should do and what we should not, that is called dilemma। तो अब ये कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करे, किसको देखे और किसको ना देखे।
अब जो है तो पहले वो क्या करता है कि बच्चे को ऐसे रैप करता है और एक बाउल टाइप का होता है, ऐसा ना प्लास्टिक का जो बाउल टाइप का होता है, उसमें बच्चे को वो मिडवाइफ को देता है, मिडवाइफ उसको रैप करके और उसको बेड के नीचे रख देती है। अब जो है एंड्रू का पूरा फोकस होता है मदर के ऊपर और उसको बचाने के लिए वो एक दवाई देता है, उसको 2 इंजेक्शन देता है। 2 इंजेक्शन में थोड़ी उसकी जो ऑक्सीजन का जो फ्लक्चुएशन था है ना ब्लड का, नर्वस सिस्टम का, वो थोड़ा सा बैलेंस होता है। तो फिर जब थोड़ा सा कंडीशन मदर की सही होती है तो अब जो है कहाँ ध्यान होता है, एंड्रू का एफर्ट किसको बचाने में, बच्चे को बचाने में। तो बट द चाइल्ड वाज लाइफलेस, तो भाई इसको बचाए कैसे। अब एंड्रू को जो है ना एकदम से दिमाग में वो जब पढ़ रहा था, जब वो अपनी स्टडी कर रहा था, तो उसको एक केस याद आया कि भाई इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, तो कैसे इस कंडीशन को डील किया जाए। तो उसने ना जिसको कहते हैं ना कि बस अपने सेंसेस को, अपने स्पिरिट्स के ऊपर वो चल पड़ा कि भाई चलो एक बार ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। उसने मिडवाइफ को फटाक से ऑर्डर किया कि भाई तुम क्या करो, फटाफट जो है मुझे 2 बाउल दो, एक में हॉट वाटर और एक में कूल वाटर, ठीक है ना। और ये हॉट वाटर और कूल वाटर को वो क्या कर रहा था कि भाई इसमें एक बार बच्चे को वो डिप कर रहा है, हॉट बच्चे को वो निकाला, उसके वो जहाँ पे वो है ना बेड के नीचे था उसको निकाला और एकदम पागलों की तरह डॉक्टर एंड्रू मैसन कर रहे थे, ठीक है ना, लाइक अ फैनेटिक। और वो बच्चे को क्या कर रहा था, एक बार हॉट वाटर में डाल रहा था, फिर कूल वाटर में डाल रहा था और फिर उसको रब कर रहा था, उसके चेस्ट पे रब कर रहा था एक सॉफ्ट टॉवल से। इस तरीके से करते 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 15-20 मिनट हो गए। मिडवाइफ और उसकी मदर तो अनकॉन्शियस थी, सुजैन मॉर्गन। बुजुर्ग को तो समझ में नहीं आ रहा था और जॉय मॉर्गन तो बाहर था। अब जो है मिडवाइफ रोकना चाह रही है उनको कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, कम से कम उस मरे हुए बच्चे को तो छोड़ दो, है ना, उनके साथ तो ये व्यवहार मत करो। लेकिन वो जो एफर्ट था डॉक्टर एंड्रयू का, उसको देख के मतलब उसकी जो एक अग्रेशन था उस चीज में, है ना, उस एक्ट को करने में, जिसके डर से मिडवाइफ भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे वो चीजों को फैसिलिटेट कर रही थी सिर्फ। अब जो क्या हुआ कि 15-20 मिनट तक ये एफर्ट चला। एंड्रू मॉर्गन पूरा एकदम पसीने से भीग चुका है, पूरा उसको आईब्रोज वगैरह है ना पानी से मैंने पसीने से डैम्प हो चुका है। वो स्लीव्स को मोड़ लेता है पूरा, है ना, टाई वाई को लूज कर लेता है और एक पल के लिए उसको लगता है कि भाई वो हार गया, उसकी सारी एफर्ट बेकार हो गई, अब कोई काम का रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। फिर है ना, फिर एक और चांस वो ट्राई करता है, फिर वो उसको डिप करता है पानी में, फिर रब करता है, चेस्ट को पुश करता है और इस प्रकार से करते करते थोड़ी देर बाद बच्चा जो है ना ऐसा हल्का सा खांसता है। जब वो खांसता है ना तो अ पीस ऑफ म्यूकस, है ना, एक हल्का सा जो लंग्स में फंसा हुआ था उसका, वो बाहर आया और सडनली उसकी बॉडी जो है व्हाइट से एकदम येलो हो गई, ठीक है ना, और बच्चे में जान आ गई। इसको जब उसने किया और जब बच्चे में जान आ गई, है ना, तो दैट वाज द मिरेकल हैपेंड। और जब ये मिरेकल हुआ तो डॉक्टर एंड्रू इज रिलीव्ड। अब क्यों डॉक्टर एंड्रू रिलीव थे, उसने बच्चे को जो है मिडवाइफ को दिया बाहर, उसने है ना, और वो उस सॉरी उस बाहर उसने जो है उसका जो फादर बच्चे का वेट कर रहा था उसको बुलाया, उसने अपना कोट उठाया और वो बॉक्स जो था वो वहीं रख दिया। काफी थक चुका था वो, क्योंकि है ना उसका शाम से ही लेके उसकी जो अपनी एक लाइफ चल रही थी 12 बजे तक, फिर 12 के बाद इनके यहाँ पे आना और ये सब करना। तो उसके बाद उसने जो है सुबह हो चुका था, तो जो माइनर लोग थे, है ना, जो माइनिंग में काम करने वाले जो लोग थे, तो वो लोग जो सुबह की ड्यूटी जिनका खत्म हो रहा था, मैंने रात का ड्यूटी जो खत्म करके सुबह जा रहे थे, और जो सुबह में ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे वो सब सड़कों में निकल चुके थे, सुबह हल्की हल्की हो रही थी। अब इन्होंने अपना कोट उठाया और बस वो चल पड़े अपने डेरे की तरफ, डॉक्टर एंड्रयू। और उन्होंने कहा कि मैं अपना वो जो बैग है वो मैं बाद में ले जाऊंगा। और जब वो वहां से जा रहे थे, दैट was the time when he was thinking that he achieved something and that was the relief of his life कि मैंने कुछ अपना अचीव किया है, that I can say it is my own। और इस प्रकार से that achievement gave him relief। So in this way Dr. Andrew Mason and his effort and his knowledge about his study help him to save that child and gave a ultimate joy and pleasure to the father and mother of that child. So thank you watching. I hope you must have understand. Okay, thank you.